Welcome to Wings A Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is another practice set. आपका एग्ज़ाम जो है वो 10th of December को है and I'm hoping and I know कि आप सबकी preparation जो है वो बहुत अच्छी होगी. अभी हो सकता है काफ़ी लोग टेंस हो और प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो. The only way to go through and get through the exam is to stay calm. सो गाइज़ अभी के टाइम पे मुझे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे पूछने के लिए कि मैम व्हाट आर द लास्ट मिनट टिप्स टू बी डन. गाइज़ अभी नथिंग न्यू जो आपने पढ़ा है, जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड इन माई ओपिनियन आई थिंक सॉल्व एज मेनी एज MCQs एज पॉसिबल. क्योंकि MCQs को सॉल्व करना अपने आप में ये कला है और उसी से ही पेपर निकलता है. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. So the competition is not about how much you know but how much you can actually solve. That is what the competition is all about. So अभी के अभी the only key is solve as many as MCQs as possible. Fine. तो चलो, let's get started. The first question is: the Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir should communicate to all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affair of the Union Territory and proposal of the legislation too. ये तो हमको पता ही है कि जो हमारा काउंसिल होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट इज़ द चीफ मिनिस्टर, राइट. और चीफ मिनिस्टर जो होता है उसको सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के जो हैं उनसे कम्युनिकेट करके जो है वो लेने पड़ते हैं. और इसीलिए जो इनका डिसीजन होता है वो कौन कम्युनिकेट करता है, राइट. तो दैट इज इट लेफ्टिनेंट गवर्नर, इज इट द प्राइम मिनिस्टर, इज इट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इज इट प्रेसिडेंट. तो याद रखना द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर. फाइन. नेक्स्ट इज without prejudice of subsection 3, Section 14 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the number of seats of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to what? Is it 121, 120, 110 or 114? So the answer is 114. Next is: the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir may make laws for any part of the Union Territory of Jammu Kashmir related to all matters specified in the state list of the Constitution except what? Public order and police, trade and commerce, land tax and estate duty, land tax and pilgrimage. तो guys इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है public order and police. Fine. Okay, next. Under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, of the total number of seats of the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir to be filled by person chosen by direct election shall be 101, 120, 107 or 124. So what is the correct answer? The correct answer is 104. Fine. गाइस देखो, ये आपके ना स्टैटिक के क्वेश्चन है, सो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है और अभी समझाने से ज़्यादा अभी आपको क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक वाले याद होने चाहिए. फिफ्थ इज: हु शेल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट शेल हैव and exercise a casting vote in the case of equality of votes under Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Deputy Speaker or a person acting as such, Speaker or person acting as such, Chief Minister or the Lieutenant Governor. देखो, सबसे पहले तो what is casting vote? कास्टिंग वोट होता है ऐसा कोई वोट जो आप पहले इंस्टेंस में नहीं देते. जस्ट इन केस ऑफ अ टाई. टाई मतलब दोनों बराबर बराबर हो गए, उस टाइम पे जो होता है ना टाई को ब्रेक करने वाला, वो वाला वोट होता है कास्टिंग वोट. ठीक है, तो वो कौन करता है? जस्ट लाइक यूनियन सेंटर में, स्टेट में, या क्योंकि हमारी यूटी के पास असेंबली है तो इसलिए इट इज स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच. ठीक. नेक्स्ट: who shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir? Collectively.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गाइज जस्ट लाइक यूनियन, जैसे यूनियन में होता है वैसे ही यहाँ पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, राइट। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है दैट इज योर चीफ मिनिस्टर, ठीक। 7th, according to Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the union territory created without legislature is what? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कारगिल। देखो ये तो है आपका, अच्छा सो इसमें दो बनी थी आपकी यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनी थी, राइट। सो कारगिल, ले और कारगिल आर योर डिस्ट्रिक्ट्स, तो ऑब्वियसली कारगिल तो होगा नहीं और जम्मू भी नहीं होगा क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों में से इट्स अ इजी क्वेश्चन, द आंसर इज लद्दाख। सो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउएवर लद्दाख डज नॉट हैव एनी, राइट। इनिशियली बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वी हैड लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अब सिर्फ असेंबली है हमारे पास। Next is Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 receive assent from the President. So for any bill to become law, the assent of the President is mandatory. ठीक है, कब मिला था इसको? 7 जुलाई, 8 सितंबर, 9th ऑफ अगस्त या 11th ऑफ जून। देखो पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तब होता है, ये जेके पीएसआई 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन टफ ज़्यादा होता अगर यहाँ पर अगस्त दिया होता, अगस्त दिया होता, अगस्त दिया होता, क्योंकि हमको पता है कि अगस्त 2019 में ही हुआ है। तो ऑब्वियसली ये आपका 9th ऑफ अगस्त है, क्योंकि 5 अगस्त को जो है दो यूटीज़ बन गई थी और 9th अगस्त को इट रिसीव द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ठीक है। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, how many women representatives can be nominated to the Legislative Assembly of the UT of Jammu Kashmir? 2, 3, 4 और 6। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ में से लिया गया है। देखो जो जो क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में आए वो लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसमें कितनी विमेन है? सो द विमेन आर 2। सो 2 women कैन बी नॉमिनेटेड, ठीक है। represented कैन बी नॉमिनेटेड, 2 represented and they are nominated। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंटली नॉमिनेटेड भी लिखा गया है, ठीक है। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताओ कि नॉमिनेट कौन करता है, ठीक है, कौन नॉमिनेट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो 10th, as per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, an administration will be appointed under Article 239 of the Constitution of India of the UT of Jammu and Kashmir, and he or she shall be designated as what? UT administrator, lieutenant governor, deputy governor और the advocate general। तो क्या है इसका आंसर? The answer is lieutenant governor, ठीक है। सो कौन अपॉइंट होता है अंडर आर्टिकल 239? दैट इज योर लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये 239 आर्टिकल किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। चलो next is, as per the provisions of Jammu and Kashmir Reorganization Act, which article of the Indian Constitution is applicable to the UT of Jammu and Kashmir? Is it 238? Is it 238A, 236 या 239A? राइट, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 239A, ठीक। नेक्स्ट, as per the Jammu and Kashmir Reorganization Act, the UT Old Ladakh comprises of which of the following territories? कारगिल, ले, डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, ले या पुंछ? दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, ये भी आपका PYQ में पूछा गया था क्वेश्चन, बट ये भी ईजी है। क्यों है? क्योंकि हमको पता है कठुआ कहाँ से आ जाएगा लद्दाख में, राइट। रियासी कहाँ से आएगा लद्दाख में, पुंछ कहाँ से आएगा लद्दाख में। सो द आंसर इज कारगिल एंड ले, ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट consists of 103 sections, 5 schedules, 105 sections, 7 schedules, 107 sections, 7 schedules, 107 sections or 5 schedules. So the answer is 103 sections, 5 schedules. बच्चे बहुत कह रहे थे कि मैम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन लेके आओ। सो आज का लेक्चर इज कम्प्लीटली ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। JNK के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं डैश सॉइल लुक्स येलो इन कलर व्हेन इट कम्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो जो
इसमें से कौन सा वाला सॉइल है जो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है वो येलो लगता है? ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या एलुवियल सॉइल? सो द आंसर इज रेड सॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बारी पूछा गया है, नॉट ओनली स्टेट एग्जाम्स में बट ऑफकोर्स हायर लेवल एग्जाम्स में भी पूछा गया है। नाउ ये जो रेड सॉइल है ये रेड कलर का होता है, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि वाई इज द कलर ऑफ रेड सॉइल रेड? सो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको पूछा जाए कि रेड सॉइल किन किन चीज़ों में डेफिसिट होती है या डेफिशिएंट होती है, इसमें किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? सो इट इज़ लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, मैंगनीज, राइट? इन चीज़ों में ये डेफिशिएंट होती है। ठीक है, Which of the following national parks in Jammu and Kashmir is famous for Hangul? A Kashmiri stag is located in Srinagar. Is it Kishtawar, Dachigam, Hemis या काजीनाग? सो याद रखना, देखो हेमिस नेशनल पार्क जो है वो हमको पता है, राइट? ओके, अच्छा एक और चीज़ देखो, इसमें क्या है ना, जो आपका दाचीगाम नेशनल पार्क है ना वो फेमस ही बिकॉज ऑफ हंगूल है, राइट? इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, फ्लैगशिप स्पीशी है ये वहाँ की। ठीक है, आपका हंगूल, और हंगूल साथ ही में आपका स्टेट एनिमल भी है, राइट? अब स्टेट नहीं, यूटी एनिमल भी है, राइट? एक और चीज़ अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि ये कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है, हमारे यूटी का बटरफ्लाई कौन सा है? ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? सो इट इज ब्लू पैंसी, ब्लू पैंसी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज जुनोनिया ऑरिथिया। ठीक है, जुनोनिया ऑरिथ्रिया और ब्लू पैंसी इज द स्टेट बटरफ्लाई और यूटी बटरफ्लाई। नेक्स्ट, दक्षुम राजपराए wildlife sanctuary is located in which district of Jammu Kashmir? Is it Budgam, Anantnag, Doda या Shopian? So what is the answer? The answer is Anantnag. ठीक, next is, what is the binomial name of Kashmiri और कश्मीर मस्क डियर? देखो जो मस्क डियर होता है ना, मस्क डियर बेसिकली दे लाइक स्टेइंग इन सॉलिटरी, राइट? ये सॉलिटरी में रहते हैं क्योंकि ये शाय एनिमल। सॉलिटरी क्या होता है? जो अलग रहते हैं, अकेले रहना जिनको पसंद होता है। ठीक है, और ये आपके माउंटेन्स में जो हैं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें किन किन रीजन्स में, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उधर ये मस्क डियर पाए जाते हैं। मस्क डियर जो होता है, बिकॉज आपने भी देखा होगा बहुत से परफ्यूम्स आते हैं, डिओड्रेंट जिनका नाम मस्क होता है, मस्क डिओड्रेंट्स आते हैं ना। सो मस्क डियर इसीलिए बिकॉज इट हैज़ अ लाइक, पुराने टाइम पे हम कहानियाँ पढ़ते थे बचपन में कि ऐसा जानवर जिसके नाभि से खुशबू आती है, सो दैट इज़ योर मस्क डियर। ठीक है, कहानियाँ पढ़ते थे हम ऐसी बचपन में। ठीक है, सो इसका बाइनोमियल नेम क्या है? सो याद रखना, इसका बाइनोमियल नेम है मॉस्चिस क्यूपरिस। ठीक है, दिस इज़ अगेन अ स्टैटिक पार्ट जो आपको याद ही रखना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। Next is, which of the following crops is referred to as Nikkumut in Jammu and Kashmir? Is it a soyabean, jowar, peas या green gram? So it is your soya bean. ठीक है, सोया बीन्स होते हैं ये। Next, when is the southwest monsoon season in Jammu and Kashmir region? जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। देखो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाई इज़ इट अ सिंपल क्वेश्चन? क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो? देखो साउथ वेस्ट मानसून्स जो होते हैं ना वो आपके समर मानसून्स होते हैं, राइट? सो समर कब होता है? जून टू सितंबर के बीच में होता है, राइट? और जून
जो है इन द स्टार्टिंग 2 वीक्स के जो होते हैं, इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून, यहाँ पर जो है वो मानसून्स आ जाते हैं, समर मानसून्स। और जो अभी के टाइम पे मानसून्स हुए कुछ टाइम पहले, दे आर नॉट साउथ वेस्ट मानसून्स, दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, सो दीज आर नॉट साउथ वेस्ट मानसून, सो द आंसर इज जून टू सेप्टेम्बर। Next is, which of the following lake is situated in the Pir Panjal range at the height of 4,000 meters above the sea level to the south of Shopian district? Is it Bihar, Kausarnag, लोनार या तानसा? देखो ये जो बाकी के हैं ना, लोनार हो गया, तानसा हो गया, विहार हो गया, दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ महाराष्ट्र। और जो आपका कौसरनाग है ना, दिस इज एक्चुअली द वन जो आपके पीर पंजाल रेंज में है एट द हाइट ऑफ 4,000 मीटर्स। ठीक है, नाउ कौसर नाग जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज विष्णुपद। ठीक है, और ये पीर पंजाल रेंज में अगर फीट पूछा जाए कितने फीट अबव है द सी लेवल, इट इज 13,124 feet। ठीक है, विच इज अबव द सी लेवल, विच इज योर 4,000 मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली? सो कौन सा है? अब्दुल्ला गार्डन, लोधी गार्डन, निशात गार्डन या हैंगिंग गार्डन? द आंसर इज निशात गार्डन। नाउ अब हो सकता है आप में से बहुत लोग बोले कि निशात गार्डन तो लार्जेस्ट है, तो याद रखना इट इज बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट इन केस ऑफ साइज, राइट। अगर हम साइज के हिसाब से देखें, द लार्जेस्ट इज द शालीमार, इट इज द शालीमार गार्डन। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट इन केस ऑफ साइज। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ पढ़ो, सो ऑलवेज बस ये नहीं कि गूगल पे लिख दिया और आंसर आ गया, ऑलवेज रीड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। स्पेशली अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखो, उन पे क्या लिखा गया है। सिर्फ गूगल पे सर्च करके आप उन चीज़ों पे यकीन ज़्यादा ना करें। ठीक है, सो द आंसर इज निशात, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट इन केस ऑफ साइज, एंड लार्जेस्ट इज योर शालीमार गार्डन। और अगर हम निशात गार्डन की बात करें, तो निशात गार्डन किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाय आसिफ खान। ठीक है, फाइन। कब बनाया था? 1633 में बनाया था। चलो, next is, after passing through Srinagar, the river Jhelum flows into which of the following lakes? ठीक है, इज इट यराब सो लेक, इज इट सोकर लेक, डल लेक और वुलर लेक? देखो ये दोनों लेक्स तो हमको पता है, ये तो लद्दाख के साथ रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये तो बाहर हो गई। बट ये जो डल और वुलर है ना, आप में से बहुतों को कन्फ्यूजन होगा और आप जल्दबाजी में ना शायद डल लेक मार्क करके आ जाओ, बट आपको याद रखना है आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर है। सो डल लेक तो इन द हार्ट ऑफ द सिटी है, राइट, लेकिन जब श्रीनगर से पास हो गई, दैट इज योर वुलर लेक। ठीक है, सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज बिल्ट ऑन द जेहलम रिवर? इज इट नीमो बाजगो, इज इट उरी सेकेंड, इज इट सलाल और इज इट दुलहस्ती? तो देखो, ओके, सो द आंसर इज उरी सेकेंड, विच इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन जेहलम रिवर। अगर हम सलाल की बात करें, दैट इज चिनाब। अगर नीमो बाजगो की बात करें, सो इट इज इंदस। अगर दुलहस्ती की बात करें, इट इज अगेन चिनाब। ठीक है, एंड योर उरी इज ऑन जेहलम रिवर। Last question is, dash wildlife sanctuary located in the Kathua district of Jammu and Kashmir कौन सी वाली है? Is it काराकोरम, is it त्रिकुटा, is it थजवास और is it जसरोटा? सो याद रखिएगा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज जसरोटा। ठीक है, सो दीज वर द 24 questions for today. I hope you enjoyed the lecture, and I will see you guys in the next lecture, and all the best. Keep revising, keep solving MCQs, and stay calm. Thank you and have a nice day.